So we will see the various reports issued by national and international institutions. So the first of all we will see about the economy section, and the first report is Global Microscope on Financial Inclusion Report 2019. It is issued by Economist Intelligence Unit of UK, and as per this, overall environment for financial inclusion has been improved globally. Digital financial services in India has also improved. The next report is Oxfam Inequality Report. It is released by Oxfam International. Oxfam International is a group of independent NGOs based in Nairobi, Kenya. As per this report, only 26 people on earth has own the same amount of resources as 3.8 billion people own. Like 26 people on the earth own the same amount of resources as the 3.8 billion people. In India, top 10% population holds 77.4% of total national wealth, and top 1% hold 51.53% of national wealth, while the remaining 99% make do with almost 48%. India's richest 1% hold more than 4 times the wealth held by bottom 70% of the country's population. Women and girls are hardest hit by rising economic inequality worldwide, and the same goes with India also. The next report is Annual Survey of Industries. It is released by National Statistical Office of Ministry of Statistics and Program Implementation. Earlier, CSO used to be the nodal agency, but CSO, that is Central Statistical Office, and NSSO has been merged merged into NSO, National Statistical Office. So NSO is the authority who releases ASI. It is conducted annually, but the data comes with a lag of 2 years. It is considered as the most comprehensive and reliable source of organized manufacturing sector data. It does not cover unorganized or unregistered or informal sector enterprises. ASI is the main survey conducted by Central Statistical Office का Industrial Statistics Wing. ASI data is available since 1959. It is available since 1959. It is possible to get the unit level data covered under ASI without revealing the identity of the unit. इसका कवरेज कहाँ तक है? It coverage extends to entire country, and it covers all factories registered under the Factories Act 1948. However, defense establishments, oil storage and distribution depot, departmental units such as railway, workshop, RTC workshop, government mints, sanitary, water supply, gas storage, etc. are excluded from the purview of this survey. The next report is IIP, Index of Industrial Production. It is also issued by NSO of Ministry of Statistics and Program Implementation. The monthly index, it is a monthly index to track the performance of industrial sector. It does this by mapping the volume of production. Volume value is compared with the same month in the previous year. There are two methods to calculate the index. The first one is industrial sector is divided into 3 sectors, that is manufacturing sector, mining sector, and electricity sector. Highest weightage is given to manufacturing sector, then mining sector, and the least weightage is given to electricity sector. If use based classification is made, then primary goods has the highest weightage 34%. इसके अंदर माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स आर कवर्ड. सेकेंड इज कैपिटल गुड्स, इसका वेटेज है 8%. मशीनरी आइटम्स आर कवर्ड. इंटरमीडिएट गुड्स 17% वेट्स, इसके अंदर यार्न, केमिकल, सेमी फिनिश, स्टील एक्सेट्रा आर कवर्ड. इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स इसका 12% वेटेज है, इसके अंदर सीमेंट, ब्रिक, रेल मटेरियल्स एक्सेट्रा आर कवर्ड. एंड फिफ्थ इज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसका 13% वेटेज है, और इसमें गारमेंट्स, टेलीफोन एक्सेट्रा कवर होते हैं. कंज्यूमर्स नॉन ड्यूरेबल, जिसका 15% वेटेज है, इसके अंदर फूड आइटम्स एंड मेडिसिन एक्सेट्रा आर कवर्ड. सो पूरे इंडस्ट्री को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन के अंदर. बट दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, दैट इज ये सबसे ज़्यादा यही इस ऐसे ही कैलकुलेट किया था, और ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आता है. दैट इज
सेक्टर स्पेसिफिक 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी को। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज टू इम्पोर्टेंट। सो इसका बेस ईयर क्या है? इट्स बेस ईयर इज 2011 एंड 12। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रिपोर्ट, दैट इज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। इट इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP जिसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इट इज ऑल्सो पब्लिश्ड मंथली एंड अबाउट 12 days प्रायर टू IIP। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के पब्लिश होने से 12 दिन पहले लगभग इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज पब्लिश किया जाता है और इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज को लिया जाता है। तो इसको हम कैसे याद करने के लिए पांच को इंडस्ट्रीज हैं, दैट इज ये एनर्जी जनरेट करने वाली एनर्जी वाली इंडस्ट्री है। 5 इंडस्ट्रीज, उसमें क्या क्या था? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड 5th इज इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर 3 आर फर्टिलाइजर्स, स्टील एंड सीमेंट। तो 8 इंडस्ट्रीज को इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज को इसमें कवर करते हैं। कोल प्रोडक्शन, इस कोल में कोल प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग कुकिंग कोल को इसके अंदर एक्सक्लूड किया जाता है। Another is crude oil. Total crude oil production is considered. Then total natural gas production is considered. Refinery products में total refinery production in terms of crude throughput is considered and it has the highest weightage. IIP में highest weightage किसका था? मैन्युफैक्चरिंग का और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, और इस इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को। देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, इंपोर्ट्स फ्रॉम भूटान, सारे तरह की इलेक्ट्रिसिटी कवर करते हैं। देन फर्टिलाइजर में यूरिया, AS, अम्यूनो सल्फेट एंड CAN, दैट इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, then DAP, then complex grade fertilizer and single super phosphate SSP। तो सिर्फ इन फर्टिलाइजर्स को कैलकुलेट किया जाता है। देन अनदर वन इज स्टील में प्रोडक्शन ऑफ एलॉय एंड नॉन एलॉय स्टील ओनली, एलॉय एंड नॉन एलॉय स्टील के प्रोडक्शन को ही सिर्फ कंसिडर करते हैं। देन इन सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट्स एंड मिनी प्लांट्स, लार्ज प्लांट्स और मिनी दोनों प्लांट्स के प्रोडक्शन को कंसिडर किया जाता है। द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द Lasper's formula of weighted arithmetic mean of quantitative relativity। So this could be asked that कौन से मेथड को यूज करके ICI कैलकुलेट किया था? तो Lasper's formula। The 8 core industries comprises 40.27% of the weight of item included in the IIP। मतलब IIP जो प्रिपेयर किया था उसके अंदर भी ICI, दैट इज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज के डेटा को यूज किया जाता है IIP के कैलकुलेशन में। ऑलराइट, सो इसका भी बेस ईयर क्या है? 2011-12 है, क्योंकि इसको इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट कैलकुलेशन ऑफ IIP, दैट्स वाई इसका भी बेस ईयर 2011-12 कर दिया गया। द नेक्स्ट रिपोर्ट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। इट इज issued by Office of Economic Advisor, DIPP, Ministry of Commerce and Industry. In this basket of WPI covers commodity falling under the 3 major groups, namely primary article, fuel and power, and manufactured products. It is released on monthly basis. Released on monthly basis. एंड इसके अंदर सिर्फ गुड्स को कैलकुलेट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट। ओके, तो हम 3 रिपोर्ट देख चुके हैं अभी तक, IIP, ICI, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज एंड WPI, ये तीनों मंथली बेसिस पे रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। द नेक्स्ट रिपोर्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अब बहुत तरह के होते हैं, तो पहले इसके बारे में देखते हैं कि कौन और अलग अलग इंडेक्स अलग अलग डिपार्टमेंट रिलीज करता है। सो CPI एग्जामिन्स वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड मेडिकल केयर। इंडिया हैज अडॉप्टेड फॉलोइंग CPI। ठीक है, ये CPI है जो इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है। तो CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI ऑल इंडिया, CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज।
and it is computed by CSO under Ministry of Statistics Program Implementation. CSO कह लीजिए या फिर NSO कह लीजिए, ठीक है. एंड इट इज ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये 4 इंडेक्स कैलकुलेट किए जाते हैं. देन CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर लेबर एंड CPI रूरल लेबर, ये कैलकुलेट करता है लेबर ब्यूरो ऑफ लेबर इंडस्ट्री. जो लेबर रिलेटेड डेटा है दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर वर्कर के लिए और रूरल लेबर के लिए, तो ये कौन कैलकुलेट करेगा? ऑब्वियसली लेबर ब्यूरो ऑफ लेबर मिनिस्ट्री इसको कैलकुलेट करेगा. इट इज टेकन एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन बाय RBI while determining monetary policy. The next report is Purchasing Managers Index. The Purchasing Managers Index is issued by IHS Markit. It is the indicator of business activity in services and manufacturing both sectors. ठीक है. एंड देन Purchasing Manager Index is a monthly index usually released at the start of every month. दिस PMI इंडेक्स भी मंथली इंडेक्स है और इसको कौन? IHS मार्केट इसको इशू करती है, ठीक है. सो मंथली इंडेक्स यूजुअली रिलीज एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ. इट इज ये एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ इशू किया था, ठीक है भाई. और इसमें सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर आता है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अंदर. और WPI इंडेक्स के अंदर सिर्फ गुड्स आता है और इसमें सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर के लिए आता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. देन इट इज अ सर्वे बेस्ड मेजर. ये कैसा मेजर है? सर्वे बेस्ड, मतलब जो भी CEOs एक सेक्टर से जाके पूछा जाता है कि भैया क्या करना है आपका इंडस्ट्री के बारे में. सो सर्वे बेस्ड मेजर है दैट मेक्स द रिस्पोंडेंट्स अबाउट चेंज इन देयर परसेप्शन अबाउट की बिजनेस वेरिएबल्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ. PMI इज नंबर फ्रॉम 0 to 100. 0 to 100 तक इसकी नंबरिंग होती है. एंड PMI अबव अगर 50 है तो इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन, अंडर 50 है तो कंट्रैक्शन, एंड एट 50 है दैट मीन्स नो चेंज. दिस इज इन कंपैरिजन टू प्रीवियस मंथ. ओके, सो नेक्स्ट इंडेक्स इज लीड्स इंडेक्स. इट इज इशूड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री along with Deloitte. Leads logistic is across different state. Index makes a perception based assessment of international trade logistics across Indian states. लीड्स इंडेक्स किस लिए होता है? लॉजिस्टिक्स के लिए होता है. लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. बॉटम 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश. द नेक्स्ट इंडेक्स इज एनुअल स्टडी ऑफ स्टेट लेवल बजट रिपोर्ट. इट इज रिलीज्ड बाय RBI. It is an annual publication and it provides assessment of finances of state government. State government के finances का assessment देता है. Annual study of state level budget report. It is released by RBI. ठीक है. The key findings क्या हैं इसकी? State gross fiscal deficit has remained within FRBM threshold of 3% of GDP during 2017 and 2018. मतलब सही है. स्टेट ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट सही है, FRBM के अंदर है. आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ स्टेट हैव राइजन ओवर द लास्ट 5 years टू 25% ऑफ GDP. तो ये आउटस्टैंडिंग डेट 25% ऑफ GDP तक पहुंच गया है स्टेट्स का. ये इसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं. एनुअल स्टडी ऑफ स्टेट लेवल बजट रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है? RBI. द नेक्स्ट रिपोर्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ये कौन रिपोर्ट करता इशू करता है? वर्ल्ड हंगर लाइफ, एक जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक आयरिश एजेंसी, दोनों मिलके ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स इशू करते हैं. इंडिया रैंक 102nd पोजीशन आउट ऑफ 117 कंट्री. 102nd पोजीशन है 117 कंट्री में से. बॉटम से हमारा रैंकिंग आ रहा है. सो विच इज बिहाइंड नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. एंड इनसे भी खराब हमारा परफॉर्मेंस है नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से. इट डिक्लाइन शार्पली फ्रॉम 95th रैंक इन 2010. तो इंडिया में हंगर बढ़ा है. ठीक है. दिस इज एन एनुअल पब्लिकेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट इज अंडर नरिशमेंट. अंडर नरिशमेंट की स्थिति में भारत का सिचुएशन इंप्रूव हुआ है. एंड चाइल्ड स्टंटिंग. चाइल्ड स्टंटिंग मीन्स लो हाइट फॉर एज. इसमें भी इंडिया हैज इम्प्रूव्ड. चाइल्ड वेस्टिंग दैट इज लो वेट फॉर हाइट,
इसमें इंडिया चाइल्ड वेस्टिंग रेट वॉज एक्सट्रीमली हाई एट 20.8%, द हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री। हालांकि फिर भी इम्प्रूव ही हुआ है, तो इससे पहले क्या होगा वी कैन इमेजिन। तो चाइल्ड वेस्टिंग में भी इंडिया का सिचुएशन इम्प्रूव हुआ है, चाइल्ड स्टंटिंग में भी इम्प्रूव हुआ है, अंडर नरिशमेंट में भी इम्प्रूव हुआ है, एंड चाइल्ड मोर्टालिटी में भी इम्प्रूव हुआ है इंडिया का रैंक। तो चार चीज़ें देखते हैं, इसमें चारों हेल्थ से रिलेटेड ही है बेसिकली। अगर देखें तो हंगर ऐसे है, तो इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इसमें क्या इकोनॉमिक स्थिति भी देखते हैं, तो नहीं, इकोनॉमिक स्थिति नहीं देखते हैं, सिर्फ क्या देखते हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, child wasting and child mortality. It also reported that open defecation is an impacting factor for health. So next report is Human Development Index HDI of 2019. It is released by UNDP. The ranking is based on a score between 0 to 1. Closer the score is to 1, greater is the level of HDI. ठीक है, इसके तीन इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्स को एसेस करने के लिए। अब टू एसेस हेल्थ क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। टू एसेस एजुकेशन क्या देखते हैं, एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एंड टू एसेस रिसोर्सेज, परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ यूएसडी मेजर करते हैं। और तीनों ही इंडिकेटर्स के लिए 1/3 वेट दिया जाता है। India's ranking improved to 129th place out of 189 countries from 130th last year. लास्ट ईयर इंडिया का रैंकिंग था 130th, इस बार है 129, तो हमारा रैंक 1 पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल MPI इंडेक्स। इट इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय UNDP. इट कैप्चर्स बोथ इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी and tracks 101 countries on deprivation across 10 indicators in health, education and standard of living. क्या है इसका, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस इंडिकेटर के ऊपर की फाइंडिंग क्या है, द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन पॉवर्टी इज वेरी हाई इन सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। 1 in every 3 children under the age of 10 and every second below the age of 18 years is a multidimensionally poor in the world. About 34% of world's children and 17.5% of adults covered under MPI survey are multidimensionally poor. One adult in 6 multidimensionally poor country one adult in 6 is multidimensionally poor compared with 1 children in 3. तो मतलब चिल्ड्रन में ज्यादा MDI multidimensional poverty है। Hence, children are more prone to multidimensional poverty than adults. India has significantly reduced its multidimensional poverty situation. Okay, so next report is global multidimensional poverty. तो हमने देख लिया, UNDP रिलीज करता है। तीसरा है जो तीसरा रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट, UNDP HDI भी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी UNDP करता है रिलीज, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी UNDP करता है रिलीज, एंड थर्ड इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. इट इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय UNDP. It measures differences between male and female achievement in 3 basic dimensions of human health in human development, that is health, education and command over economic resources. तो health के लिए it measures female and male life expectancy at birth. For education, female and male expected years of schooling for children and female and male mean year of schooling for adult age 25 and older. Command over economic resources के लिए क्या देखते हैं, measured by female and male estimated earned income. It is calculated based on GNI per capita in PPP in terms of dollar at the 2011 constant prices. India ranked 122 out of 162 countries and its score is 0.829 as compared to 0.828 of South Asian average. मतलब स्कोर बेहतर हुआ है. So the next report is the design of digital financial infrastructure, a lesson from India. It is released by Bank for International Settlements, BIS. BIS is an international financial organization owned by 60 central banks including India's RBI, and BIS का headquarter स्विट्जरलैंड में है. And as per this design of digital financial infrastructure, a lesson from India report,
India's success is in spreading digital economy and enhanced banking accounts and reason for such success. Enhanced banking accounts मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस बेटर रहा है इन स्प्रेडिंग डिजिटल इकोनॉमी एज पर दिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इशू कौन करता है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। द नेक्स्ट इज इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020। इट इज रिपोर्टेड बाय VBox, पीपल स्ट्रॉन्ग, CII in collaboration with UNDP. It is to provide overview of supply of talent and demand from industry. इसके की फाइंडिंग क्या है कि employability of India's youth is stagnant at 46.1%. Increase in share of gig workers. Gig worker के शेयर में improvement हुआ है. Only 60% student know about National Apprenticeship Program. So प्रोग्राम की अवेयरनेस भी यूथ में कम है। नेक्स्ट रिपोर्ट इज ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। इट इज इशूड बाय क्रेडिट सुशी ग्रुप और स्विट्जरलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी। सो एज पर दिस रिपोर्ट अबाउट 0.9% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ओन ऑलमोस्ट 44% ऑफ टोटल वेल्थ। तो ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट है। इसी तरह का एक और रिपोर्ट था जिसमें हमने इनइक्वालिटी के बारे में देखा था, तो कंफ्यूजन ना हो, वो था ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें भी इनइक्वालिटी के बारे में बात की गई थी। और ये है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जो क्रेडिट सुशी ग्रुप इशू करते हैं, इसमें भी इनइक्वालिटी की ही ऑलमोस्ट एक तरह से बात की गई है। इंडियाज टोटल हाउस होल्ड वेल्थ ग्रीव बाई 5.2%। इंडिया रिमेन्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द वर्ल्ड विथ हाउस होल्ड वेल्थ ग्रोइंग फास्टर देन एनी अदर रीजन। तो इंडिया का हाउस होल्ड ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा तेज है। द इंक्रीज इन हाउस होल्ड वेल्थ इन इंडिया वॉज मोस्टली ड्रिवन बाई राइजिंग होम प्राइसेस। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इट इज इशूड बाई नीति आयोग एंड इट इज टू इवेल्युएट इनोवेशन environment of state and UTs and states that innovation ecosystem is stronger in south and western part of India. South and western part of India में innovation ecosystem बेहतर है and Karnataka is the most innovative state in India. The next report is ease of doing business report. This report is issued by World Bank and the indicator measures the performance of countries across 10 different dimensions in 12-month period. According to it, New Zealand retains first position whereas Somalia ranked 190th spot. न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन है, सोमालिया का सबसे लास्ट पोजीशन है। इंडिया इज रैंक इम्प्रूव टू 63rd पोजीशन इन 2019 फ्रॉम 76th पोजीशन इन 2018। तो इंडिया का रैंक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर। स्कोर ऑल्सो इम्प्रूव फ्रॉम 67.23 इन प्रीवियस ईयर टू 71 दिस ईयर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक इज बेस्ड ऑन 10 पैरामीटर्स। 10 पैरामीटर्स के बेस में अब इसको याद करने के लिए हम समझेंगे इसको कि बिजनेस कैसे शुरू करते हैं और लास्ट तक इंसॉल्वेंसी तक जाते जाते क्या बीच में प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए विल स्टार्ट अ बिजनेस एंड उसके लिए फंड की जरूरत होगी। स्टार्ट अ बिजनेस देन विल लुक फॉर फंड्स एंड देन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स। अब प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गया, अब उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना हुआ तो उसके लिए पहले कंस्ट्रक्शन परमिट लेना पड़ेगा। देन कंस्ट्रक्शन होम कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चाहिए घर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी। देन अब बिजनेस सेटअप हो गया, अब क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखेंगे, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। देन पेइंग टैक्सेस, ट्रेड करने से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। देन 8th इज प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। देन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है ट्रेडिंग करने के बाद तो हम उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होता है। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है, हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, देन विल गो फॉर इंसॉल्वेंसी। तो दीज आर द 10 इंडिकेटर्स दैट इज स्टार्टिंग बिजनेस, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, trading across borders, paying taxes, protecting minority investors, contract enforcement, and resolving insolvency. These are the 10 parameters. India's rank improved based on following 4 parameters. That is starting business, dealing with construction permits, trading across borders, and resolving insolvency. इन 4 जगहों पे हमारा
परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। At present, only Delhi and Mumbai is included in ease of doing business report, but next year Kolkata and Bangalore is to be included in this report. So this is end of economy session, economy related reports. Now we'll move on to see the environment related reports. Environment related reports. So environment, this is global mobility report, and it is released by Sum for All, that is sustainable mobility for all. Global mobility report कौन इशू करता है? Sustainable mobility for all, ये ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट इशू करते हैं। इसका सम फॉर ऑल का सेक्रेटेरिएट इज रन बाय वर्ल्ड बैंक एंड इट्स मेंबर कैन बी बैंक्स, यूएन एजेंसीज, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, इंडिविजुअल को छोड़ के ऑफ कोर्स। एंड द रिपोर्ट सस्टेनेबल मोबिलिटी बेस्ड ऑन फोर क्राइटेरिया, दैट इज यूनिवर्सल एक्सेस, एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड ग्रीन मोबिलिटी। डेवलप्ड इकोनॉमीज आउट परफॉर्म इन ऑल क्राइटेरिया एक्सेप्ट ग्रीन मोबिलिटी। तो डेवलप्ड इकोनॉमी हर क्राइटेरिया में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ ग्रीन मोबिलिटी में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल रोडमैप फॉर एक्शन इज रिलीज बाय सम फॉर ऑल टू अचीव दिस 4 टारगेट्स। सो नेक्स्ट रिपोर्ट इज सरल इंडेक्स। सरल इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? सरल इंडेक्स इज पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सरल इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सरल का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, सरल। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स aimed to assess states based on several parameters critical for establishing state strong rooftop solar market। तो इसमें भी कर्नाटका टॉप किया है। कर्नाटका एक और रैंक में टॉप किया था, वो था इनोवेशन। इनोवेशन इकोसिस्टम पूरे इंडिया में सबसे बेहतर कहाँ पे है? कर्नाटका में। एंड सरल सोलर रूफटॉप के लिए भी सबसे अट्रैक्टिव जगह कौन सा है? कर्नाटका। एंड इट इज फॉलोड बाय तेलंगाना, देन गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान। द नेक्स्ट रिपोर्ट इज फ्यूचर ऑफ अर्थ रिपोर्ट 2020 एंड ये कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय फ्यूचर अर्थ। एंड 5 ग्लोबल रिस्क ऑफ अर्थ, इसमें इन्होंने बताया है कि 5 ग्लोबल रिस्क ऑफ अर्थ हैं। कौन कौन? फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्शन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मेजर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम, फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस। ये 5 मेजर ग्लोबल रिस्क ऑफ अर्थ हैं। द नेक्स्ट रिपोर्ट इज स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020। ये इट वॉज रिलीज एट 30th COP ऑफ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज एंड वाइल्ड एनिमल। तो एज पर दिस रिपोर्ट इंडियाज नेशनल बर्ड पीकॉक हैज इंक्रीज्ड, मतलब पीकॉक की जनसंख्या बढ़ी है। वल्चर्स एंड ईगल्स पॉपुलेशन हैज डिक्रीज्ड। हाउस स्पैरोज पॉपुलेशन was stable overall, but in urban areas it is declining. And declining birds कौन कौन से? raptors, vultures, etc. Unique feature of this report is that data has been collected from ordinary citizens as well, and it is in public domain. So the next report is global report on internal displacement, GRID जिसको कह सकते हैं। It is issued by Internal Displacement Center based in Geneva, Switzerland. As per this report, India has the highest number of people displaced by disaster and extreme weather events in 2018. This is really serious. Global report on internal displacement center. Another is Shannon-Weiner Index. It is published in 1949 by Shannon and Weiner. इसका एक मेंशन था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर भी। And basically what is this? It measures the biodiversity of ecosystem and it gives a species richness along with relative abundance. तो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के अंदर स्पेसीज रिचनेस को मेजर करने के लिए शैनन वेनर इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ग्रीन वॉच। ग्रीन वॉच इज एन NGO based in Bonn, Germany. It is published annually, that is Global Climate Risk Index is published annually. It assesses countries and
quantify impact of climate change through economic losses, losses to GDP and fatalities to arrive at ranking. Most vulnerable countries to climate change कौन कौन से हैं? जापान सबसे ज़्यादा vulnerable, उसके बाद फिलीपींस, फिर जर्मनी, फिर मडागास्कर एंड फिफ्थ पोजीशन इज इंडिया. मीन्स इंडिया इज ranked fifth in the list of most vulnerable countries. सबसे ज़्यादा vulnerable है जापान. This year is the 15th edition of Climate Risk Index. India has recorded the highest number of fatalities due to climate change and second highest GDP loss due to climate change. The next report is a India State of Forest report, and it is released by Forest Survey of India. And FSI Forest Survey of India works under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It is mandated to release India State of Forest report, ठीक है. And the first report came in 1987. And India State of Forest report 2019 is 16th such report. 1987 इंदिरा गांधी was assassinated in 1984 और उसके 3 साल के बाद इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. इसका कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट फॉर रिमेंबरिंग आई एम ट्राइंग टू लिंक दिस. तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पहला कब आया? 1987 में. और ISFR 2019 इज द 16th सच रिपोर्ट. इट इज़ ए बाइएनियल रिपोर्ट, मतलब वंस इन एवरी 2 years ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है. द नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल next is Climate Performance Index 2020. It is also released by Greenwatch, Climate Action Network and the New Climate Institute. ये तीनों मिलके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करते हैं. और अकेला ग्रीन वॉच कौन सा करता है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी ग्रीन वॉच का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में ग्रीन वॉच का कंट्रीब्यूशन है. एंड इट इज पब्लिश्ड एनुअली कवरिंग 57 countries and European Union, and the purpose is to track countries' climate protection performance. It is based on 14 indicators in 4 categories. Greenhouse gas emissions, जिसका 40% सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है. Renewable energy 20%, energy use and climate policy, इन सब का 20% वेटेज और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का 40% वेटेज. ये 4 पैरामीटर 4 कैटेगरी के अंदर 14 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इशू किया जाता है. और इंडियाज रैंकिंग हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 11th in 2019 to 9th in 2020. The next is Tiger Census. It is issued by Wildlife Institute of India and National Tiger Conservation Authority. So इसके बारे में पढ़ते हैं आप. It is a 4-yearly report. 4 साल में एक बार रिपोर्ट इशू होता है. इसका सेंसस मेथोडोलॉजी इज डबल सैम्पलिंग बेस्ड ऑन ग्राउंड बेस्ड सर्वे एंड एक्चुअल इमेज कैप्चर्ड ऑन कैमरा ट्रैप्स. एंड 3 फेजेस में इसका होता है सेंस मेजरमेंट. इन फेज 3 द इंफॉर्मेशन वाज प्लॉटेड ऑन द फॉरेस्ट मैप प्रिपेयर्ड विथ रिमोट सेंसिंग एंड GIS GIS M स्ट्राइप्स को यूज करके हमने इसका डेटा कैलकुलेट किया. 2018 सेंसस इज द 4th cycle of tiger census based on double sampling. The first was conducted in 2006. डबल सैम्पलिंग बेसिस पे 4th सेंसस है. The first census based on double sampling method is in 2006, the second is 2010, third is 2014 and the 4th is 2018. India has 5 tiger landscapes. ये कौन कौन से हैं? शिवालिक हिल्स एंड गंजेटिक प्लेन्स. सेकेंड इज सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट्स. थर्ड इज वेस्टर्न घाट्स. फोर्थ इज नॉर्थ ईस्ट हिल एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड द 5th इज द सुंदरबंस. इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस रिपोर्ट के क्या रहे कि मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन. मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन एंड बिगेस्ट इंक्रीज हैज ऑल्सो बीन इन मध्य प्रदेश. A massive 71% इंक्रीज हुआ है टाइगर पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश में. और पेंच टाइगर रिजर्व हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टाइगर्स इन इंडिया. पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में ऑब्वियसली. तो सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन पेंच टाइगर रिजर्व में. कर्नाटका इज द 2nd हाईएस्ट एंड उत्तराखंड इज द 3rd हाईएस्ट. देन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स असम हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एंड टाइगर पॉपुलेशन फेल इन छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम. छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम में टाइगर पॉपुलेशन कम हुआ है.
नो चेंज इन टाइगर पॉपुलेशन इन उड़ीसा, नो चेंज इन टाइगर पॉपुलेशन, अच्छा उड़ीसा में टाइगर पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इंडिया इज होम टू ऑलमोस्ट 70% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। ओवरऑल 33% rise in tiger population has recorded than 2014 levels. In Baksa, Dampa and Palamu, which are tiger reserves, no traces of animal has found. तो ये तीन जगह पे कोई टाइगर मिला ही नहीं, जबकि ये टाइगर रिजर्व है। कौन कौन? बक्सा, दम्पा और पलामू। द रिपोर्ट डज नॉट कंटेन नंबर ऑफ प्रीडेटर्स लाइक लिपर्ड्स, ठीक है, लिपर्ड जैसे का इसमें नहीं क्लासिफिकेशन। देन कम्स एशियन वाटर बॉर्ड सेंसस, इट इज इशूड बाय वेटलैंड इंटरनेशनल, it is issued by Wetland International, Asian Water Board Census. Other information, it covers the entire East Asian Australian flyway, East Asian Australian flyway and large part of Central Asian flyway. In India, Asian Water Board Census jointly coordinated by Bombay Natural History Society and Wetland International. It is done on annual basis. तो ये थे हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स। अब हम देखेंगे हेल्थ रिलेटेड रिपोर्ट्स। हेल्थ रिलेटेड एक ही रिपोर्ट है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। इट इज रिलीज बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ एंड इंटेलिजेंस, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। एज पर दिस रिपोर्ट इन, हाँ इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन एंड फर्स्ट रिपोर्ट वाज रिलीज इन 2005। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज रिलीज 14th रिपोर्ट। इट कवर्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हाँ इसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कवर हो रहा है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल में। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एमिनिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्थ स्टेटस लाइक कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड RCH एंड एक्सेट्रा। सम फाइंडिंग्स इसके हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल आर मोर देन मेल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल्स आर more than males. Arunachal Pradesh has the lowest population density and Delhi has the highest population density. तो ये था रिपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोफाइल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ एंड इंटेलिजेंस द्वारा। अब आते हैं IR रिलेटेड रिपोर्ट्स। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट इज इशूड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, a UN based agency. As per this report, India is the top remittance recipient of the country. India is the top remittance recipient of the in the recipient country in the world. India accounts for the highest share with 17.5 million Indians living outside the country. The top migration corridor for Indians are, सबसे ज़्यादा इंडियंस कहाँ रहते हैं? UAE, USA and Saudi Arabia. This is the top migration corridor and highest number of migrants entering India come from Bangladesh. So this is IR related. Then we'll move to polity related reports. So in polity related report we will see the first report is a state of food security and nutrition in India, nutrition in the world, a state of food security and nutrition in the world report. It is फूड सिक्योरिटी है तो इसमें FAO जरूर होगा। इट इज इशूड बाय FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO, ये सब मिलके नेशनल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन रिपोर्ट इन द वर्ल्ड इशू करते हैं। और इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन एंड इट इज इन लाइन विथ SDG 2। SDG 2 किसकी बात करता है कि जीरो हंगर करना है दुनिया में, तो इट इज इन लाइन विथ SDG 2। इट प्रेजेंट्स द लेटेस्ट एस्टिमेट ऑन फूड्स इनसिक्योरिटी, hunger and malnutrition at the global and regional level. Both China and India has shown decline in poverty. The next report is Henley Passport Index. It is released by Henley and Partners. It is issued annually. It ranks according to the number of destinations their holder can access without a prior visa. And the ranking is based on IATA Association of around 290 airplanes data. Japan has topped the लिस्ट, मतलब जापान के लोग सबसे ज़्यादा देशों में घूम सकते हैं बिना प्रायर वीज़ा के। सर्बिया इज द ओनली यूरोपियन कंट्री टू विच इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैन ट्रेवल वीजा फ्री। सर्बिया इज द ओनली यूरोपियन कंट्री
यूरोप में सिर्फ एक ही कंट्री है सर्बिया जहाँ पे इंडियंस बिना पासपोर्ट बिना वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी इंडेक्स. इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इंडिया रैंक्ड 76th एंड इट टॉप्ड डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड. सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 76 था. इट टॉप डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड. सोशल मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट इन पर्सनल सर्कमस्टांसेस either upward or downward of an individual in relation to those of their parents. That is, it is ability of child to experience a better life than their parents. This is social mobility. So इसके की डायमेंशन, सोशल मोबिलिटी मतलब आप अपने पेरेंट्स से बेहतर लाइफ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, ये मेजर करता है सोशल मोबिलिटी. की डायमेंशन इसमें क्या है कि हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन. Social mobility is released by World Economic Forum. The next is Global Democracy Index report. This is released by the Economist Intelligence Unit. It is also issued annually. The state of democracy in 167 countries based on these 5 criteria. State of democracy को करता है कौन? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो 5 क्राइटेरिया इज इलेक्टोरल प्लूरलिज्म, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर एंड सिविल लिबर्टीज. इलेक्शन कैसा हो रहा है, गवर्नमेंट कैसी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है एंड सिविल लिबर्टीज कितनी है. ये 5 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. स्कोर्ड ऑन स्केल ऑफ 0 to 10. 2018 में इंडिया का रैंक 7.23 है, जबकि 2019 में इंडिया का रैंक डिक्लाइन हुआ है. लोएस्ट स्कोर सिंस 2006 एंड इट हैज़ बीन रैंक्ड 51st पोजीशन. इट्स रीजन इज ड्यू टू इरोजन ऑफ सिविल लिबर्टी इन लास्ट 1 year ड्यू टू आर्टिकल 370, 35A, NRC इन असम, CAA एंड सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट. कैटेगरी ऑफ फ्लॉड डेमोक्रेसी अलॉन्ग विथ USA. ठीक है, मतलब इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा गया है. USA भी फ्लॉड डेमोक्रेसी कैटेगरी में है. फ्लॉड डेमोक्रेसी वेयर फ्री इलेक्शंस आर हेल्ड इवन दो सिविल लिबर्टीज आर गारंटेड बट लेस अवेलेबल टू पीपल. 22 कंट्रीज अंडर द फुल डेमोक्रेसी कैटेगरी आ रही हैं. पूरी दुनिया में सिर्फ 22 कंट्रीज हैं जो फुल डेमोक्रेसी कैटेगरी में है. द नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. इट इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेड क्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी में. स्कोर 0, हाईली करप्ट, टू 100 वेरी क्लीन. अगर 0 स्कोर आया तो भैया हाईली करप्ट है आप, 100 है तो वेरी क्लीन. इट ड्रॉज ऑन 13 सर्वे ऑन 180 कंट्रीज. तो खुद सर्वे नहीं करता है, अलग अलग रिपोर्ट्स को कंपाइल करके अपना लॉन्च करते हैं. इट वॉज फर्स्ट लॉन्च इन 1995 एंड इंडिया रैंक्ड 2018 स्कोर 41. तो 2018 में इंडिया का स्कोर था 41 और रैंक था 78. 2019 में स्कोर है 41, रैंक है 80. ड्यू टू ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग नॉट अंडर RTI, लॉबिंग बाय पावरफुल बिजनेसमैन, हमारा जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स डिक्लाइन हुआ है. इंडिया चाइना ऑन द सेम रैंक. फर्स्ट रैंक कंट्री कौन है? डेनमार्क, देन न्यूजीलैंड, देन थर्ड. डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड दोनों फर्स्ट रैंक पे हैं. थर्ड रैंक इज फिनलैंड एंड द मोस्ट करप्ट कौन है कंट्री? सोमालिया. सोमालिया इज द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड as per corruption perception index released by Transparency International. The next is healthy state progressive India report. It is released by Niti Aayog. The report ranks state and UTs innovative on their year-on-year incremental change in health outcomes as well as their overall performance with respect to each other. Healthy State Progressive India report is developed by Niti Aayog with technical assistance from World Bank and in consultation with Ministry of Health and Family Welfare. स्टेट का कैटेगराइजेशन 3 ग्रुप में है, लार्जर स्टेट, स्मॉलर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज. लार्जर स्टेट में केरला, आंध्र प्रदेश, केरला सबसे टॉप पे रहा है और आंध्र प्रदेश उसके बाद महाराष्ट्र. और टॉप 3 एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस किसका रहा है? हरियाणा, राजस्थान एंड झारखंड. ये टॉप 3 बेस्ट परफॉर्म एनुअल इंक्रीमेंटल इनका रहा है.
स्मॉलर स्टेट में टॉप 3 रहे हैं मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा, और सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस दिखाया है किसी ने तो वो है मणिपुर। यूटी की अगर बात करें तो इसमें टॉप 2 है चंडीगढ़ और दूसरा है दादर एंड नागर हवेली, एंड टॉप इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस भी इन्हीं दोनों ने किया है, दैट इज चंडीगढ़ एंड दादर एंड नागर हवेली। द नेक्स्ट रिपोर्ट इज जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर इंडिया का पोजीशन 112वें रैंक पे चला गया है 108वें रैंक से। लास्ट ईयर में 108वां रैंक था और अब है 112वां रैंक। इसका क्राइटेरिया क्या है? पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल। इन तीनों में इंडिया का रैंक डिक्लाइन हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अगला है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ये रिलीज करते हैं नीति आयोग अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्टेट्स एंड यूटीज एंड वर्ल्ड बैंक। इसका काम है टू रैंक स्टेट बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। इट इंडिकेट्स इंडिकेटर फ्रॉम एलिमेंट्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। तो एलिमेंट्री, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल, कॉलेज, हायर एजुकेशन इसके अंदर नहीं लिया आता है इंडिकेटर में, ठीक है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में। इंडिकेटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, आउटकम एंड गवर्नेंस अप्रोच। तो आउटकम के अंदर लर्निंग कैसा है, एक्सेस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी कैसा है, इक्विटी आउटकम कैसा है, एंड गवर्नेंस में इंक्लूड स्टूडेंट एंड टीचर अटेंडेंस, कि बच्चे आ रहे हैं और शिक्षक जी भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, टीचर अवेलेबिलिटी, ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। स्टेट्स कैटेगराइज्ड इनटू लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट एंड यूटीज। यहाँ भी कर्नाटका ऑन द टॉप रहा है, स्मॉल स्टेट में मणिपुर ऑन द टॉप रहा है, एंड यूटी में चंडीगढ़ ऑन द टॉप रहा है। द नेक्स्ट इज चिल्ड्रन फूड एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, चिल्ड्रन फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट। ये यूनिसेफ रिलीज करती है, यूएन चिल्ड्रन फंड रिलीज करती है। ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, दैट इज अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, हिडन हंगर एंड चाइल्ड ओवरवेट। ट्रिपल बर्डन किस चीज को कहते हैं? मतलब अंडर न्यूट्रिशन भी है, हिडन हंगर भी है और चाइल्ड ओवरवेट भी है। ट्रिपल बर्डन दुनिया फेस कर रही है। एटलीस्ट 1 in 3 चिल्ड्रन अंडर 5 आर अंडर नरिश्ड और ओवरवेट, एंड एटलीस्ट 1 in 2 चिल्ड्रन सफर फ्रॉम हिडन हंगर। इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो 35% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन सफर फ्रॉम स्टंटिंग एंड 17% सफर फ्रॉम वेस्टिंग, 33% आर अंडरवेट एंड 2% आर ओवरवेट। Every second woman in the country is anemic and 40% children are anemic। 50% women anemic है और 40% children anemic है। Prevalence of children under 5 who are either stunted, wasted or overweight are highest in India। तीनों ही स्थिति में इंडिया का हाईएस्ट है। स्टंटेड भी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, वेस्टेड भी सबसे ज़्यादा है और ओवरवेट भी सबसे ज़्यादा है। तो इट ऑल्सो शोज कि इनइक्वालिटी कितना ज़्यादा है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आर बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज दैन इंडिया। द नेक्स्ट रिपोर्ट इज फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। इट इज रिलीज बाय यूएसए बेस्ड फ्रीडम इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीडम इन द वर्ल्ड एनजीओ। इंडिया स्कोर डिक्लाइंड बाय 4 पॉइंट एंड इट इज रैंक्ड 83rd पोजिशन वेयर स्कोर हैज reduced to 71 from 75 last year. India is one of the bottom 5 free countries. Botswana, Peru, bottom 5 free countries. तो bottom 5 free countries कौन कौन से? बोत्सवाना, पेरू, तिमोर लेस्ते और इंडिया 5वां है बॉटम 5 में। The top 5 countries फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग। इसका रीजन क्या है? ब्लैंकेट इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 एंड इंटरनेट लॉकडाउन, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। इट इज रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विथ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट विथ नीति आयोग। नीति आयोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
It ranks individual states in respect to their capacity to deliver access to justice. और 4 पिलर ऑफ जस्टिस को मेजर करता है. कौन कौन से? पुलिस, प्रिजन, लीगल एड एंड जुडिशियरी. ये 4 पिलर ऑफ जस्टिस को मेजर करता है. अब आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. ये कौन इशू करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 5 पैरामीटर्स: जीडीपी, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, लेवल ऑफ करप्शन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं? फिनलैंड, डेनमार्क टॉप 2 कंट्रीज हैं. इंडिया रैंक 144th पोजीशन, और इंडिया का रैंक खराब हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस, मतलब हम लोग ज़्यादा खुश नहीं रह रहे हैं. द नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन इसको रिलीज करती है. अदर इंफॉर्मेशन में देखें अगर, टू असेस द स्टेटस ऑफ गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट ऑन वेरियस इंटरवेंशंस. इट कंसिडर्स 10 सेक्टर्स. गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 10 सेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज इशू करती है. ठीक है, तो पहला है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, दूसरा है पब्लिक हेल्थ, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चौथा है जुडिशियरी एंड पब्लिक स्क्रूटनी, पांचवा है सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, छठा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, सातवां है इकोनॉमिक गवर्नेंस, आठवां है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, नौवां है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड 10वां है इन्वायरमेंट. बिग स्टेट्स में नंबर 1 तमिलनाडु है. नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स में नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश, एंड यूटीज में नंबर 1 है पुडुचेरी. गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेज इशू करती है. द नेक्स्ट इज 2019 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग. इट इज रिलीज्ड बाय इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD बेस्ड इन स्विट्जरलैंड. As per this report, Switzerland is the first and Denmark is in second position. India has slipped 6 places to 59th rank. Then comes ease of living index. It is released by Ministry of Housing and Urban Affairs. India seeks to assist cities in undertaking a 360. This index seeks to assist cities in undertaking 360-degree assessment of their strength, weakness, opportunities and threats. Ministry of Housing and Urban Affairs released the first ever report Ease of Living Index covering 111 Indian cities in August 2018, which serves as a litmus test to help assess the progress made in cities through various initiatives. Ease of Living assessment standard is also linked with majority of Sustainable Development Goals, especially to the SDG 11, which talks about sustainable cities and कम्युनिटीज. तो ये रहता है हमारा पॉलिटी रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स. नाउ विल सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिपोर्ट्स. इसमें सिर्फ 2 है. सो ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स. इट इज रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन फॉर स्टेट्स एंड यूटीज इन 2 पार्ट. अच्छा, स्टेट और यूटी के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स रिलीज किया जाता है और 2 पार्ट में रिलीज होता है. फर्स्ट पार्ट इज about infrastructure development and the second part is about demand side parameters such as percentage of households using computer laptops with internet connections. The first report issued in 2019, then every year till 2022. BRI Broadband Readiness Index was recommended by National Digital Communication Policy 2018. The next is ICT Development Index. It is issued by UN International Telecommunication Union. UN International Telecommunication Union ICT Development Index इशू करती है. Based on international agreed information and communication technologies indicator. It is based on 11 indicators categorized in 3 clusters: access, use and skill. तो इस तरह से हमारा खत्म होता है सारे रिपोर्ट्स. Thank you.